Hello everyone, I'm Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to solve for that how this Cobb-Douglas production function is a special case of CES production function. Okay, so like CES production is a general form of production function that includes every other kind of production functions. So Cobb-Douglas production function is a, like you can say that, is the daughter or son of this CES production function. Okay, so we have to solve for this, and this is your Cobb-Douglas CES production function, and this is your Cobb-Douglas production function. Okay, you have to solve that ये CES production function इसका part है. Okay, so you have to take some assumptions about it. First, that there comes the CRS, constant returns to scale. Constant returns to scale. That means alpha plus beta, the parameters must equals to 1. Okay, and CRS क्या बताता that m times change in inputs must equals to m times change in output, right? So first assumption क्या है, alpha plus beta must equals to 1. Second one, rho is equals to 0. Okay, अगर rho is equal to 0 रखोगे then you will get ES is equals to 1. How come? Because you know ES is equal to 1 by 1 minus rho. हम लोगों ने derive किया expression के लिए. You can watch that video as well. So when you put rho is equals to 0, you will get 1 minus 0, and you will get ES is equal to 1. Okay, so these are two main assumptions for this particular video, that you have to take CRS, you have to take rho is equals to 0. Now we will solve it. First, let me write CES production function here. Q is equals to alpha L rho plus 1 minus alpha L rho 1 by rho, where you know Q is your output, alpha is the distribution parameter, or they also show the output elasticity. Output elasticity for labor and capital. That means 1% change in labor or 1% change in capital, how this percent change will affect the Q. Okay, but as we know we have CRS, so in this case 1% change in L or K will lead to the 1% change in Q as a whole. Okay, so rho is your substitution parameter. जो कि बताता है पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, एंड अल्फा क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कि लेबर का शेयर कितना है टोटल आउटपुट में और कैपिटल का शेयर कितना है टोटल आउटपुट में. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व फॉर दिस, just take log both sides. So when you take log both sides, you get log q is equal to 1 by rho आगे आएगा, and then you get log alpha L rho plus 1 minus alpha K rho. Okay, like this. Now we have to put the limits in order to solve for Cobb-Douglas production function. So हमारी लिमिट क्या है, that your rho must approach to 0. जो कि 0 रखोगे then only you will get the Cobb-Douglas production function out of the CES production function. So log q is equal to limits log is equal to 0, 1 by rho log alpha L plus 1 minus alpha K rho. ओके, अभी आपको क्या करना है, रो की जगह पे 0 रखना है. ठीक है, then what you will get, limits 0
Okay, let me write it here. 1/0 log alpha L0 plus 1 minus alpha K0. ओके, एंड एज वी नो, अगर L0 है या किसी का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे रहता है? L0 है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, L1 माइनस L, लाइक L1 माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल होगा तो यू विल गेट 0, एंड आप इसको इंडिविजुअली इस तरीके से लिखते हो, L इंटू L माइनस 1, L1 इंटू L1 माइनस 1, अब नीचे लेके जाओगे तो साइन चेंज होगा, L/L, एंड L से आप कैंसिल करो यू विल गेट 1, तो L0 इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली अगर किसी का भी पावर, किसी का भी एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू आएगा 1। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो वी कैन राइट हियर our limit approaches to 0, 1/0, let me, okay, so we'll get log, and L0 है तो इसका 1 हो जाएगा, K0 का 1, then we'll get log alpha plus 1 minus alpha, ओके, एंड अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यू लेफ्ट आउट विद लिमिट्स 1/0 एंड log 1, एंड log 1 का वैल्यू होता है 0, so you will get this log q is equals to limits 0/0। so यहाँ पे तो सॉल्यूशन क्या है? इनडिटर्मिनेट, राइट? दिस इज नॉट द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। सो इन दिस सिनेरियो वी विल यूज अ फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं एल डैश हॉस्पिटल रूल। ओके, जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाए एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, जो क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू लाइक m, यहाँ पे क्या रहता है, सिमिलरली इस फॉर्म में ही लिखते हैं, दैट योर लिमिट x approaches to 0 and you get this situation m x n x, ठीक है, दोनों जगह आपके यहाँ पे देखो नीचे रो है, ऊपर भी रो के टर्म्स में, तो आप इस तरीके से लिखोगे, एंड रो हमारी लिमिट है यहाँ तरीके से, तो आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दिस m डैश x n डैश x, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके से, partial derivative of m with respect to x and partial derivative of n with respect to x। n क्या है? डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर हमारे क्या है? रो, न्यूमरेटर में क्या है? दिस log अल्फा l रो प्लस दिस टर्म। ओके, तो इस वाले सिनेरियो में अगर आप पुट करोगे तो हमारा बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, योर लिमिट x इज इक्वल टू रो 0, मैं कंपेयर करके बताती हूँ आपको जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ x क्या है? हमारे केस में x क्या है? रो है। ओके, m विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है? का log अल्फा रो प्लस 1 माइनस अल्फा के रो। ओके, ये आपका n x इसके इक्वल है, इक्वल्स टू रो। ओके, तो सिमिलरली अब आपको इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाना है, आपको मेन याद रखना है कि जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट व्हेन यू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस m विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, जब आप इसका m को x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो हमारे सिनेरियो में क्या है? x क्या है? रो, m क्या है? ये, तो आप इसको इस होल टर्म को आपको रो के टर्म सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपली आपको याद रखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाना है, देन यू विल गेट दिस वैल्यू log अल्फा, और यू कैन सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हो, दैट अल्फा l रो इंटू log l प्लस 1 माइनस अल्फा log
सॉरी 1 माइनस एल्फा के रो लॉग के। जब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू रो, यू विल गेट दिस टर्म। ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाना है आपको, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको ये याद रखना है। ये आपका सारा टर्म सेम है, बस आपको लॉग एल एंड लॉग के, ये बस इन दोनों का एडिशन करना है इस पूरे टर्म में। ओके, इन सेकंड व्हेन यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस एन एक्स, जो हमारे किसके इक्वल है, एन बाई एक्स, मतलब हमारा एन किसके इक्वल है, रो के। एंड जब आप रो का डिफरेंशिएशन रो के टर्म्स में करोगे देन यू विल गेट 1, बिकॉज कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 1। ओके, सो यू आर लेफ्ट विथ, okay, sorry, let me add one thing as well. And in this case आप जब आप I'm using different color, m, ये जो m है इसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे देन यू विल आल्सो गेट दिस टर्म ऊपर, एंड नीचे सेम एज इट इज l 1 माइनस l के रो, आपको नीचे का टर्म एज इट इज सेम रहेगा। ओके, so this is the partial derivation of this particular whole term with respect to rho. You will get this whole term. I am using different color here as well, जिससे आपको highlighted रहे। So you will get log alpha rho log L ऐड करना है बस आपको यहाँ पे, alpha 1 minus alpha k rho log k. So you will get this whole term. Okay, for this particular function when you differentiate this particular function with respect to rho, because हमारी लिमिट क्या है, रो। ओके, एंड इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट रो का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रो, यू विल गेट 1। सो using L dash hospital rule, you will get limits rho approaches to 0 log q is equals to alpha L rho log L plus 1 minus alpha k rho log k divided by alpha L rho 1 minus alpha k rho. Okay, you left out with this because रो का तो 1 ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रो, यू विल गेट दिस टर्म। ओके, नाउ हमारी लिमिट्स क्या है, दैट रो इज इक्वल्स टू 0, यही तो हमारी लिमिट है। अब आपको रो की जगह पे 0 लिखना है, देन यू विल गेट रो सॉरी log q इज इक्वल्स टू अल्फा l 0 log l plus 1 minus alpha k 0 log k divided by alpha l 0 plus 1 minus alpha k 0। ओके, एंड एज वी नो जब भी एक्सपोनेंट 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, सो l का 0 1 हो जाएगा, तो यू लेफ्ट विद l अल्फा log l प्लस 1 माइनस अल्फा log k डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अल्फा से अल्फा, यू लेफ्ट विद log q इज इक्वल्स टू अल्फा log l प्लस 1 माइनस अल्फा log k। ओके, एंड ये log को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हो, दैट log l k, अगर इस तरीके से देन यू विल गेट log l प्लस log k। तो हमारा log l log k इस फॉर्म में भी है, अल्फा 1 माइनस अल्फा ये क्या है, पावर है, इस तरीके से अल्फा 1 माइनस अल्फा। ओके, और मैं इस तरीके से बताऊं आपको, आपके पास गिवन है l log l प्लस 1 माइनस अल्फा log k, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो दैट log l अल्फा इंटू k
1 माइनस अल्फा। ओके, इसका जनरल फॉर्म किस तरीके से रहता है, दैट लॉग ए इंटू बी, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो यू कैन राइट लॉग ए प्लस लॉग बी। यहाँ पे पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा। अगर अदरवाइज अगर ये इस तरीके से होता, लॉग सपोज ए के बी सी, तो के आगे आ जाता, सी आगे आ जाता पावर। जैसे हमारे टर्म्स में अल्फा पावर है, तब इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो यू विल गेट दिस टर्म। ओके, so we can rewrite this equation like this: log q is equals to log l alpha k 1 minus alpha. Okay, now we can take the exponent of this to just remove this l log, ये log हटाने के लिए take its exponent, exponential function। आपको इसकी मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत रोड लर्निंग चलता है, ठीक है। तो यू कैन रीराइट दिस इक्वेशन लाइक दिस: e log q equals to e log l k 1 minus alpha। ओके, एंड यहाँ पे क्या रहता है, जब आप इसे सॉल्व करोगे फर्दर, देन यू विल गेट e log is equal to 1, e log is equal to 1। ओके, और log e is equal to 1, log e क्या होता है 1, then you can write you left with q l alpha k 1 minus alpha। ओके, एंड अब आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी that this particular function looks like a Cobb-Douglas production function। ये आपको याद रखना होता है that log e is equal to 0, ये आपको ऐसे रखना है याद, that log e is equals to होता है 1, log e की e log है ना, तो इसको आप 1 रखोगे then you will left with only q here, and e log की जगह 1 रखोगे then you will left with this power only। okay, so like this is the final expression for our particular this video, that this is our Cobb-Douglas production function। एंड हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि हमारा गिवन जो प्रोडक्शन फंक्शन है किस तरीके से है ये, and we have derived the same expression using this CES function, right? So in this case I'll also tell you the similarities between the two functions। यहाँ पे आपका CES प्रोडक्शन फंक्शन, ये है आपका कॉब डॉगलस। ओके, इसका एक्सट्रीमली जनरल फॉर्म आप इस तरीके से लिखते हो, दिस गामा एल एल रो 1 माइनस अल्फा के रो एप्सिलॉन रो। ओके, and first let me tell you about this CES। okay, so where यहाँ पे Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन कैसे दिखता है, Q A अल्फा K 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तुम लोग सिमिलैरिटीज देखेंगे। ओके, फर्स्ट इसको उठाओ, वेयर दोनों का Q सेम है। Q Q Q क्या बताता है, आउटपुट, आउटपुट प्रोड्यूस्ड, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, और यू कैन से सिंपली आउटपुट। ओके, यहाँ पे यहाँ गामा, यहाँ का A, गामा इज इक्वल्स टू A, दैट डिपिक्ट्स द टेक्निकल कोफिशिएंट। ये क्या बताता है, लेवल ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट। ओके, और इसे एफिशिएंसी पैरामीटर भी बोलते हैं, एफिशिएंसी पैरामीटर।
दिस इज योर एफिशिएंसी पैरामीटर। तो यहाँ इन केस ऑफ CES फंक्शन दिस गामा इज इक्वल्स टू दिस ए, एंड दोनों ही क्या डिपेक्ट करते हैं, टेक्निकल कोफिशिएंट। तो ये सिमिलैरिटी है दोनों में। ओके, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अल्फा, यहाँ पे अल्फा, ये वाले अल्फा दोनों सेम है, एंड अल्फा डिपिक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, or you can say that output elasticity. It measures the output elasticity with respect to labor and capital. That means 1% change in labor, like how a 1% change in labor relates to the how much change in Q. Okay, अगर आप अल्फा क्या बता रहे हैं, अगर आप एल को अल्फा वन सॉरी अल्फा को 1% से चेंज करोगे, देन आपका Q जो है अल्फा टाइम से चेंज होगा। एंड सिमिलरली अगर आप K को 1 यूनिट से चेंज करोगे तो आपका जो है Q 1 माइनस अल्फा यूनिट से चेंज होगा। ओके, तो ये क्या बताते हैं, आउटपुट इलास्टिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। ओके, कि टोटल शेयर कितना है लेबर और कैपिटल का ऑन द टोटल आउटपुट। फोर्थ रो, ये है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। दैट मेजर्स द possibility of substitution. Okay, and you have 5. This E term depicts the returns to scale. Returns to scale क्या हो सकते हैं, CRS, DRS, IRS. Okay, that is constant returns to scale, decreasing returns to scale and increasing returns to scale. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है 1। अल्फा एंड बीटा आर द इंडिविजुअल शेयर ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा लेसर देन 1, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ पे आपको सिमिलरिटी मिली कि यहाँ जो CES प्रोडक्शन फंक्शन में गामा है वो किसके सेम है, ए एफिशिएंसी पैरामीटर के। एंड आपका अल्फा दोनों में सेम है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर को बताते हैं, लेबर एंड कैपिटल दोनों में सेम है, क्यू दोनों में सेम है। दो टर्म्स का डिफरेंस है, रो एंड ई। ई रिप्रेजेंट द रिटर्न के पैरामीटर। ओके, तो ये जो CES प्रोडक्शन फंक्शन एक जनरल फॉर्म है, एक वाइड फॉर्म है जिसमें ये सारे फंक्शन कवर अप करते हैं। फंक्शन, लीनियर फंक्शन, all production functions are a part of CES production function. ये सिमिलैरिटीज थी जो मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे गामा दिस वाई दिस इक्वल टू ए, अल्फा दोनों में सेम है, एल एन के सेम है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। दिस इज लाइक इजी। Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.